Hello students, today's topic of discussion is rearrangement of carbocations. Okay, now carbocations, as you remember, they're the species which carry a positive charge on them as sp2 hybridization, and they are electron poor, electron deficient in nature. Okay, so they need electron. The octets are not complete in case of a carbocation. Now from my lecture of carbocation, from the previous lectures of carbocation, if we talk about stability of carbocation, it depends upon three factors. First is plus R, positive resonance or positive mesomerism. Second effect is a hyperconjugation, and third effect is a positive inductive effect. Now this three effect will generate lot of electron density around carbocation and try to complete its octet और ट्राई टू रिड्यूस इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. जैसा अभी रेजोनेंस में आपने देखा था, डायरेक्टली पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है टुवर्ड्स दी कार्बन एटम या तो लोन पेयर शिफ्ट होता है एंड इट गेट स्टेबलाइज. हाइपर कंजुगेशन में नेबरिंग सिम्मा इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड एंड गेट स्टेबलाइज. प्लस आई like alkyl groups around the carbon atom make it stable. If you remember these three factors में से सबसे strong factor resonance है, then hyperconjugation, then plus I effect. Okay, now just for an revision, if you remember the order of stability of carbocation, so this was the tricyclopropanyl carbocation, which has dancing resonance, which was more stable than dicyclopropyl. Okay, here there will be a CH carbocation, which was more stable than cyclopropyl methyl carbocation. Then this was more stable than triphenyl carbocation, more stable than diphenyl methyl carbocation, which was more stable than tert butyl. If you remember, 9 alpha hydrogen for hyperconjugation, and 3 plus I effect, which was more stable than benzyl CH2 plus, which has almost same type of stability as compared to allyl carbocation. Resonance, यहाँ भी resonance है, which was more stable than 3 degree, any third degree except this 2 degree, 1 degree. फिर लास्ट में कौन आता है? मिथाइल कार्बोकटायन. Okay, then the least stable carbocations are phenyl carbocation and vinyl. Phenyl and vinyl almost same. ये सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं. दिस वॉज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन. और आपको याद होगा कि here there was dancing resonance. Here in this case they were directly resonance shifting of pi bond towards this positive charge on carbocation. यहाँ पर भी resonance हो रहा है, यहाँ पर प्लस आई हाइपर कॉन्जुगेशन. बट मैंने इसका रीज़न दिया था बिकॉज ऑफ दी हाइड्रोजनेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज. सो ये आपका ऑर्डर था रिस्पेक्ट टू कार्बोकटायन. And the stability you are aware of depending upon resonance, hyperconjugation and plus I. Now what is the rearrangement of carbocation? We know that carbocation forms as an intermediate during a reaction. So carbocation normally कब form होता है? As an mediate during chemical reaction. And if there is a chance or if there is an opportunity for the carbocation to convert itself from least stable to the most stable form, then some kind of groups or an atom get transferred to that carbocation and convert into the other form. अब ये समझाने के लिए I'll give you a very best example. For example, addition of HBr to an alkene. So कैसा ऐड होता है HBr? HBr is an unsymmetrical reagent, but this is a symmetrical. So H plus Br minus H goes to one carbon, Br goes to another carbon. It results into formation of what? CH3, CH2, Br. Simple addition है.
बट दिस एडिशन वॉज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, E प्लस, बिकॉज सबसे पहले अटैक करने वाला बंदा ये है. तो इफ यू सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, H plus will attack first on any of the carbon because both of them are symmetrical. Suppose वो इस कार्बन पे अटैक किया तो पाई बॉन्ड यहीं शिफ्ट होगा and it results in the formation of CH2, CH3. A carbocation, this is a slow step, rate determining step, and the fast step, the remaining Br minus, which was your nucleophile. मैंने बताया था रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल पहले कौन अटैक किया वो इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, Br minus will attack on CH2 and it will form Br CH2 CH3 ethyl bromide. Okay, and this reaction is called as electrophilic addition. Very simple. अब सपोज यही रिएक्शन मैं आपको इसमें बता रहा हूँ. सेकेंड एग्जाम्पल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वही आपने ऐड करना है HBr. तो सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा, स्लो स्टेप. इफ आई आस्क यू कि कौन से में करेगा, सब विच कार्बन, फर्स्ट कार्बन और द सेकेंड कार्बन एटम, दैट विल डिपेंड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म देखा होगा कि ऑफ कोर्स सर मोस्टली this H plus ions, the proton which is an electrophile, attacks on the first carbon atom and the entire pi bond shift on the first carbon atom and it results into the formation of CH3 CH plus CH3, a secondary carbocation. और अगर ये H plus यहाँ शिफ्ट होता तो pi bond इस तरफ आता और प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है. and primary carbocation is less stable, therefore mostly the entire H plus ions will shift on the first carbon atom so that a carbocation created on the second carbon, because second carbon का जो carbocation it is more stable because it is surrounded by 6 alpha hydrogen and 2 plus I effect. 6 alpha hydrogen will cause hyperconjugation and give them stability. और यहाँ पर अगर वो सेकेंड पे अटैक करता तो फर्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज आता, जिसके नेबरिंग में सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन. सो वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन विल बी लेस इन दैट केस. सो देयरफॉर यहाँ पर ही शिफ्ट होगा. देन फाइनली इन द फास्ट स्टेप कौन अटैक करेगा? इन द फास्ट स्टेप Br माइनस विल अटैक एंड इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CHBr CH3. अब थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज मैंने एग्जाम्पल को ऐसा लिखा है, CH3 okay, then CH3 okay, here there is a CH double bond CH2, अगेन HBr ऐड करना है. तो सबसे पहले कौन अटैक करेगा? H प्लस आयंस ऑन दी फर्स्ट कार्बन आटम. ऑफ कोर्स क्यों, रीजन क्या हो गया? टू गेट व्हाट? अ सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन. और अगर वो सेकेंड पे करता तो इट विल गेट व्हाट? फर्स्ट डिग्री. तो ऑब्वियसली वो इधर ही करेगा. तो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा CH3 CH3 CH प्लस CH3. तो ये गेट सेकेंड डिग्री. फिर उसके बाद आप Br माइनस का अटैक कराओगे इस पोजीशन पे. ओके, सो Br माइनस इस पोजीशन पे अटैक करेगा, दैट इज अ फास्ट स्टेप एंड इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH3 CH Br CH3. बट ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसके बनने के चांसेस बहुत कम है, ऑलमोस्ट बनेगा ही नहीं. क्वेश्चन इज व्हाई? बिकॉज इफ यू सी प्रॉपरली here there is a formation of secondary carbocation, but if there is a transfer of a certain group on this carbocation, the stability of carbocation can be increased. और हमको पता है कि सेकेंड डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कौन है? 3 डिग्री. तो आसपास देखो, अगर मैंने यहाँ का हाइड्राइड इज दी H माइनस शिफ्ट किया CH प्लस पे, सो इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ intermediate, that is CH3 CH3 plus CH2 CH3 आ गया. अब इसके ऊपर अगर Br माइनस अटैक करेगा विथ अ फास्ट स्टेप, सो इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 Br CH3 CH2 CH3. तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू दिस. ऑलमोस्ट बनेगा ही. दिस इज द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट. प्लस अगर बराबर देखोगे तो ये जो कार्बोकैटायन बना है, दिस कार्बोकैटायन इज टर्शियरी, दिस कार्बोकैटायन वाज सेकेंडरी, दिस कार्बोकैटायन सराउंडेड बाय 3 अल्फा एंड 1 अल्फा, 4 अल्फा हाइड्रोजन, दिस कार्बोकैटायन इज सराउंडेड बाय 3 3 एंड 2. कितना हो गया? 6 + 2
8 अल्फा हाइड्रोजन, सो 8 टाइम्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट मिलेगा इनको. Here the hyper conjugation effect will be less as compared to this, plus it has a greater plus I effect. It has only two types of plus I from both sides. It has plus I from all three sides, so this carbocation will be more stable as compared to this. So what I want to say, if there is a chance of formation of carbocation in a molecule, then there will be a shifting of an atom, an ion or a group to get more stable form. तो यहाँ पर मैंने आपको कौन सा शिफ्ट दिखाया, हाइड्राइड शिफ्ट. क्लियर है. तो अब मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ फॉर शिफ्टिंग. रिमेंबर, ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट रिएक्शन फॉर कार्बोकैटायन rearrangement, either they can be a hydride shift, they can be a phenyl shift, they can be a methyl carbanion shift, they can be a primary carbanion shift, they can be a secondary carbanion shift. क्लियर है. they can be a, यहीं पर ही बना देता हूँ, CH3C CH3 टर्शरी कार्बोनाइन शिफ्ट, जिसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग शिफ्ट दिखाएगा H माइनस. और ये जो शिफ्टिंग हो रहा है, दिस रीअरेंजमेंट इज 1-2 शिफ्टिंग. इफ यू सी प्रॉपरली, H माइनस एक कार्बन से शिफ्ट होके सेकेंड कार्बन पे गया, तो हम इसको 1-2 शिफ्ट बोलते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज 1,2 shift of H minus hydride. So for carbocation rearrangement there will be a 1-2 shift of these anions, जिसमें से सबसे इफेक्टिव होता है H माइनस. सबसे पहले ये शिफ्ट होता है, फिर CCH5 माइनस बिकॉज वो सबसे लीस्ट स्टेबल फॉर्म है, फिर CH3 और इन सब में से सबसे ज़्यादा टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर मिथाइल. मतलब मिथाइल शिफ्ट सबसे एंड में होगा अगर इन सारे शिफ्ट अवेलेबल है तो, वरना इन तीनों में से सबसे ज़्यादा होगा H माइनस, फिर उसके बाद में CCH5 माइनस, फिर बाद में CH3 माइनस. यर इन दिस केस सी प्रॉपरली, H माइनस को हमने शिफ्ट किया टू गेट अ टर्शरी कार्बोकैटायन, नॉट CH3 माइनस. क्लियर है. बिकॉज दिस हैव अ लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कम्पेयर टू अदर molecules, so that is why hydride rank 1 in the shifting, that is 1-2 shifting. Okay, this is called as migratory aptitude. Remember this word. So migratory aptitude का ये ऑर्डर होगा. एक चीज़ और याद रखना, रिमेंबर shifting is directly proportional to plus I effect and plus R effect. For example, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी मिथाइल, इसमें से सबसे ज़्यादा शिफ्ट कौन दिखाएगा, टर्शरी. उसका रीज़न क्या हो गया, बिकॉज व्हेन यू कंपेयर अ CH3 माइनस विथ अ टर्शरी कार्ब अनायन, अगर आप इससे कंपेयर करते हो तो दिस CH3 ग्रुप्स प्लेज अ रोल ऑफ प्लस I and it will shift their electron density towards C minus, and the electron density at C minus will increase. So here the electron density is very high and here the electron density is less. तो जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है ऑफ कोर्स वो ज़्यादा ईजिली माइग्रेट हो सकता है फ्रॉम वन पोजीशन टू दी कार्बोकैटायन पोजीशन टू स्टेबलाइज दैट कार्बोकैटायन, क्योंकि ये कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, more easy will be the shift. But you remember this shift, the order for shifting of carbocations. Okay, now let us take some more example and try to understand कि shifting कहाँ का देखने को मिलता है. This shifting या rearrangement is seen in reactions like SN1 जहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, reactions like E1 जहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, E1 elimination. Okay, reactions like electrophilic addition where there is a chance of formation of carbocation and etc. So such type of reaction where there is a formation of carbocation and if you see a chance of shifting of any one of these radical
on carbocation to get more stable form, you have to shift it to get the stable product, and that will be your major product. क्लियर है? अब सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, इफ आई आस्क यू C6H5 माइनस, ओके, C6H5 minus with OCH3 and C6H5 minus, it's minus sign, with NO2 group. So see, OCH3 plays a role of plus R. It can donate electron to the ring, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग को तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज. NO2 group is a minus R group. It will withdraw electron from the ring, और विड्रॉ करेगा तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा. ओके, सो अभी इन सब में से विच विल बी हैविंग ग्रेटर चांस ऑफ माइग्रेशन, so that will be OCH3 because electron density is high. Then second will be normal phenyl anion because here there is no plus I, no minus I effect. And the third will be with a minus R where it withdraws electron. और अगर मैं इनको स्टेबिलिटी आपको पूछूँ कि दिस अमंग देम विच इज मोर स्टेबल, तो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस एंड दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर. तो याद रख लेना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर, बट माइग्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर. ओके, राइट डाउन योर, ये अपने कार्बन आयन के लेक्चर में भी देखा होगा, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर और माइनस आई, बट स्टेबिलिटी बट it is inversely proportional to migration of carbon ion. मतलब the carbon ion which is more stable will migration percentage will be least. तो ये सबसे stable carbon ion है but उसका migration सबसे कम होगा because electron density is decreasing because of presence of minus R which will withdraw the electron from the ring, and your plus R के वजह से वो electron donate करेगा तो इसका electron density बनाएगा तो इसका migration ज़्यादा होगा. Clear है? Let's see some example to understand the migration in this. For example, CH3C, CH3. Here there is a, हम लोग ने एक ले लिया है, suppose एक group ले लिया है, phenyl group PH. Here there is a CH, इस पे हम लोग डाल देंगे plus charge, and here there is a CH3. Now see properly. Here in this case it is a kind of a secondary carbocation, carbon attached to two more group. तो ये secondary carbocation हो गया, एक normal carbocation है. अब इसके अंदर मुझे migration effect दिखाना है. Migration क्यों हो सकता है? Because here in this case there is a chance of formation of what? A tertiary. कब होगा? अगर phenyl migrate होगा या तो methyl migrate होगा. ठीक है ना? So migration effect totally depends upon the order जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो. But so with respect to the order, if phenyl shift, it result into the formation of CH3C, CH3CH, phenyl ring इधर पे आ गया, and there is a CH3 with a plus charge. ये बन गया tertiary carbocation. But if अगर methyl group shift होगा, so it result into the formation of CH3C ring, a phenyl ring, plus charge, CH3, ये भी एक टर्शरी हो गया. तो क्वेश्चन ये है कि हमको रीअरेंजमेंट ज़्यादा कौन सा दिखाना है इसके अंदर. अब दोनों में देखो 1-2 शिफ्ट हो रहा है, फर्स्ट कार्बन से सेकेंड कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, तो 1-2 शिफ्ट हैपनिंग, हियर ऑल्सो 1-2 शिफ्ट हैपनिंग, बट विच विल बी मोर स्टेबल कार्बोकेटायन. ओके, सो अब वो डिपेंड करता है द स्टडी, द थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टडी. If you check this molecule, the formation of this molecule will be very fast, the speed will be more, so it is kinetically controlled reaction. Okay, and here the stability is defined by the amount of energy release. बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है अगर इस पर प्रोटोनेशन होगा, तो दिस इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड. ओके, तो अब इसमें से हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे? नॉर्मली दिस इज अ केस ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटायंस आर मोर स्टेबल क्योंकि यहाँ से एक तो इसको रेजोनेंस भी मिलेगा, प्लस यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिलेगा. यहाँ से कोई रेजोनेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन. सो अब ये हमेशा चेक करना कि क्वेश्चन में मेंशन कैसा किया है. नॉर्मली दिस सपोज टू बी द मोस्ट स्टेबल फॉर्म.
बट अगर क्वेश्चन में कभी लिख के आया कि दिस स्टेप इज, सपोज दिस स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अ स्लो स्टेप, तो दिस बिकम्स मोर स्टेबल, तो प्रोडक्ट ये डिसाइड करेगा। बट अगर कुछ नहीं लिख के आ रहा है, सो नॉर्मली आपको ये शिफ्ट दिखाना है विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर, एंड दिस सपोज टू बी द मोस्ट स्टेबल बिकॉज द बेंजाइलिक कार्बोकैटायन विल गिव यू मोर रेजोनेंस। तो रिमेंबर दैट कि अगर काइनेटिक से स्टडी करोगे सो ये ज़्यादा बनेगा, एंड थर्मोडायनेमिकली ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो दिस इज मोस्ट काइनेटिकली स्टेबल, दिस इज थर्मोडायनेमिक स्टेबल। मोस्टली आपको यही में दिखाना है। बट इन केस अगर कभी रिएक्शन में लिख के आया कि दिस स्टेप इज़ अ स्लो स्टेप और ये फॉर्मेशन दिया है, सो आपको ये सिलेक्ट करना होगा। बट 99% आपको यही करना है विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर यू चेंज इन टू द माइग्रेशन इन द कंपाउंड। ओके, अब सपोज ऐसा एक एग्जाम्पल आ गया कार्बोकैटायन का। लेट्स सी दिस कार्बोकैटायन, साइक्लोहेक्सेन का रिंग है। ओके, नाउ हियर मैंने प्लस चार्ज डाल दिया है। दिस इज़ अ सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है। नाउ इफ आई शिफ्ट दिस हाइड्राइड, एंटायर हाइड्राइड to this carbon atom, it result, this is a 1-2 shift again of hydride, so it result into the formation of, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज। अब ये कौन सा बन गया, टर्शियरी कार्बोकैटायन। और साइक्लोहेक्सेन की रिंग सारी रिंग से ज़्यादा स्टेबल होती है, तो इसके लिए रिंग का यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगी, ओनली देर इज अ शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड विल टेक प्लेस। क्लियर है? नाउ वन मोर एग्जाम्पल, see this example properly। CH3C, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ O C2H5, a plus R group, a phenyl group, here there will be a CH and there will be a CH3 plus। again this is a secondary carbocation। now अगर phenyl group यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, phenyl group shift here, यहाँ पर बन जाएगा टर्शियरी कार्बोकैटायन। ओके, और अगर OC2H5 शिफ्ट हो जाता है तो भी एक टर्शियरी कार्बोकैटायन बनता है। मतलब यहाँ पर दो चांसेस हैं। सपोज मैंने यहाँ पर 1,2 फिनाइल शिफ्ट किया, दिस एंटायर C माइनस, सो व्हाट आई गेट, CH3CO C2H5 CH रिंग CH3। क्लियर है? बट अगर मैंने यहाँ पर OC2H5 शिफ्ट किया, जो एक्चुअली में शिफ्ट होना बहुत डिफिकल्ट है, सपोज, सो आई गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, CH3C प्लस बेंजाइल, देन CHOC2H5 CH3। if I ask you which is most stable, सो मोस्टली स्टूडेंट इसी को देखेंगे, सर ये ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज यहाँ पर बेंजाइल है, रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। बट नो, दैट इज़ नॉट द केस। Here in this case, this is a directly plus R group, a very strong plus R group, and also it directly provides the electron pair to the carbocation formed in the reaction। और ऐसे ग्रुप प्रेजेंट होने के वजह से पहले ही ये लोन पेयर्स इनको डोनेट कर दिए जाते हैं। क्यों? उसका रीज़न इनका स्ट्रक्चर होता है। ये जो कार्बोकैटायन होता है ये प्लेनर होता है लाइक दिस, और एक ग्रुप इधर पे रहेगा OC2H5। तो जो इसका p ऑर्बिटल होता है, द p ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन एटम, एम्प्टी p ऑर्बिटल प्लस चार्ज, एंड ये जो लोन पेयर्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपस में पैरेलल होते हैं, किस पे, जो ऑक्सीजन पे है, तो विच कैन बी ईजिली डोनेटेड। तो सच टाइप ऑफ डोनेशन इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग, विच इज शोन बाय OC2H5 ग्रुप, विच इज शोन बाय NH2 ग्रुप, N पे लोन पेयर होता है वो डायरेक्टली डोनेट कर सकता है, विच इज शोन बाय सेकेंडरी अमाइन, N पे लोन पेयर है वो डोनेट करेगा, विच कैन ऑल्सो बी शोन बाय टर्शियरी अमाइन, N पे लोन पेयर है वो डोनेट करेगा। सो दीज compounds, they are these groups which are present on the carbocation, they show back bonding। and back bonding का इफेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है फॉर स्टेबलाइजिंग एज कम्पेयर टू बेंजाइल ग्रुप। तो ये ज़्यादा बनेगा इसके अंदर बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग ऑफ सच ग्रुप ऑन द कार्बन आटम। रिमेंबर दैट दिस टाइम this product is kinetically controlled and this product is thermodynamically, but ये इतना फास्ट स्पीड से बन जाएगा
क्योंकि इसको बैक बॉन्डिंग मिलने वाला है, कि ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन विल बी वेरी 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 लेस. सो यूर इन दिस केस दिस विल बी द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट. तो याद रखना, ये जो केस आप देख रहे हो काइनेटिक स्टडी और थर्मोडायनेमिक स्टडी, ये डिपेंड करता है केसेस पे. अगर बैक बॉन्डिंग का केस आपको दिख रहा है तो आप उसके ऑपोजिट वाला कोई भी, इफ यू शिफ्ट एनी अदर ग्रुप नो प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्टली प्रेजेंट ऑफ a group which is donating electron pair, that is plus R, or you can say a back bonding group like NH2 OH group OR group, ये डायरेक्टली रिलीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे, इन स्पाइट ऑफ दैट कि यह बेंजाइलिक बनने वाला है. क्लियर है ना? तो यू हैव टू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल फॉर द शिफ्टिंग. ठीक है, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल इन दिस. लेट्स कंपेयर दिस एग्जाम्पल. सपोज मैंने ये एग्जाम्पल लिया है CH3 CH2 CH plus CH2 CH3. This is a 2 degree carbocation. It has 2 plus 2 4 alpha hydrogen for hyperconjugation and 2 time plus I effect. Okay. लेकिन सपोज अगर मैंने इस कार्बन से और फ्रॉम दिस कार्बन इफ आई डू अ हाइड्राइड शिफ्ट, मतलब 1,2 H शिफ्ट, अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट, सो क्या प्रोड्यूस करेगा? CH3 CH2 CH2 CH plus CH3. See this molecule, even this is 2 degree carbocation, so sir, which is more stable? So it depends upon the total number of alpha hydrogen. Here there are 2 plus 2 4 alpha hydrogen to neutralize it, but here there are 2 plus 3 5 alpha hydrogen to neutralize it. तो ये ज़्यादा stable होगा as compared to this structure. Okay, so remember ये conversion कैसा हो रहा है? A hydride shift. अच्छा, हाइड्राइड शिफ्ट विल टेक प्लेस अंटिल यू गेट अ मोर स्टेबल. मल्टीपल शिफ्ट भी हो सकते हैं किसी कंपाउंड के अंदर टू गेट द, फॉर एग्जाम्पल CH3CH रिंग इज योर CH2 plus, okay, and here there is a CH3. ओके, अब ये एग्जाम्पल्स थोड़ा सा हम लोग देखते हैं. लेट अस एनालाइज दिस एग्जाम्पल. अगेन दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकटायन. ये एक 2 डिग्री के फॉर्मेट में आ गया है. और अब बराबर देखोगे तो इसके एक साइड पे देर इज अ CH3 ग्रुप एंड देर इज अ CH2 ग्रुप अटैच टू इट. ओके, नाउ अभी मुझे इसका शिफ्टिंग करना है. तो हाउ, कैसे, किस तरीके से शिफ्ट करेंगे? लेट अस एनालाइज. मैं ग्रुप में थोड़ा और चेंज करता हूँ. आई विल मेक इट हियर अ CH3 ग्रुप. अब मुझे शिफ्ट करना है. तो दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकटायन. आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे तो मैं शिफ्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इफ आई शिफ्ट अ हाइड्राइड योर कार्बोकटायन विल जनरेट ऑन दिस बिकम प्राइमरी. प्राइमरी इज लेस स्टेबल. लेकिन अगर मैंने ये हाइड्राइड को यहाँ शिफ्ट किया, अ 1,2 शिफ्ट ऑफ H माइनस, सो इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3CH विद अ रिंग. वी गेट C plus CH3 CH2 CH3. दिस बिकम्स अ टर्शरी मोर स्टेबल फॉर्म. क्या इससे और स्टेबल फॉर्म बन सकता है? बराबर देखो, C ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन गेट अ टर्शरी एज वेल एज बेंजाइलिक अलॉन्ग विद इट. वो भी कैसा होगा? आपके पास 3 ग्रुप है, फिनाइल मिथाइल H माइनस. तो सबसे ज़्यादा शिफ्ट कौन दिखा सकता है? H माइनस. तो अगेन मैंने अगर H माइनस शिफ्ट किया इधर पे, अगेन 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट. सो व्हाट आई विल गेट हियर? CH3C plus ring CH CH3 CH2 CH3. Now this is again a tertiary, but this is benzylic tertiary. Plus it will have hyperconjugation. Plus it will also have a plus I effect. सब चीज़ मिलेगा इसके अंदर. So there can be a multiple 1,2 shift, but एक के बाद एक shift to get the more stable form out of it. Clear है? ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है while rearrangement of carbocations. Now suppose if I take this example, आपने देखा था कि साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल फॉर्म. तो सपोज मैं एक स्ट्रक्चर ऐसा बना रहा हूँ लाइक दिस. यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है ओके. और आपको याद होगा कि दिस कार्बोकटायन प्लस साइक्लोप्रोपाइनिल कार्बोकटायन CPM वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था इज मोर स्टेबल. अब प्लस चार्ज इधर है, ये एक सेकेंडरी कार्बोकटायन है. अच्छा, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है. यर देर इज अ CH3 ग्रुप, यर देर इज अ 3 हाइड्रोजन, यर देर इज अ हाइड्रोजन, यर देर इज अ हाइड्रोजन. ओके,
Now if I shift this plus charge over here, it be more stable because of presence of CH3, जो हम लोगों ने ये एग्जाम्पल में देखा, CH3 मिल रहा है, ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है सर। लेकिन अगर मैंने प्लस चार्ज यहाँ शिफ्ट कर दिया और हाइड्राइड को इधर शिफ्ट कराया to this carbon atom, so what I'll get a structure like this, plus on this carbon, and this will be a ring. Now see properly, ये जो प्लस आया है इस कार्बन के ऊपर, this entire part is nothing but your CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बन है, कार्ब कटायन, which is most stable form. आपको याद होगा ट्राईसाइक्लो, TCPM will be more stable than bicyclo, which is more stable than CPM, cyclopropanol carbocation. So this is more stable form. तो इसके लिए ये shifting भी possible है. You have to see कि which group is present when you shift a hydride to the other carbocation. Now let us talk about ring shifting, the rearrangement in ring. Let's talk about ring shifting.